Hello, everyone, and welcome back to the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. So, today we bring you the seventh episode of the Boundary Banter, and I've been explicitly asked to host this episode because it's number seven. And, like I have a very, very long dated and backdated relation with number seven because of Mahendra Singh Dhoni. So, it has been a great journey for the channel till now, and today will be no less. We will be talking everything cricket, above, beyond, within everything cricket, because this is the game we live and breathe every day. And there have been many, many interesting developments also coming in. Gautam Gambhir and the team has flown to Sri Lanka now. There has been a press conference that happened, and there's a lot going on in the world of cricket based on the selection. There have been new T20. There is a new Indian T20 captain now. We have seen the phase where the likes of Rohit Sharma and Virat Kohli were rested for particular series going beyond. It's in the past now because now we have them available for every long format game. So very, very interesting times for cricket. And that being said, I mean, there is a series right 3 to 4 days after like we end this recording. And so that I mean, want to know, yaar, ki, what are your thoughts about India versus Sri Lanka? Why this has been always touted as our extra time wala cricket जब हम जाके अपने youngsters को time देते हैं, but this time it's very, very different and very, very difficult for a few to digest also, because we have chosen a full strength squad, as they say, right? As Gambhir and Agarkar are saying, right? The full strength squad may there have been some baffling selections which we will come to, and this is not a extra or a fitted in series anymore. So, क्या thoughts हैं आपके इंडिया श्रीलंका पे? आई थिंक इस सीरीज ये जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज है इसको इतना तवज्जो जो दिया जा रहा है आई थिंक वो इसी हम्म. वजह से है बिकॉज कि एक तो गौतम गंभीर कोच बन गए हैं एंड एंटिसिपेशन इस सीरीज की हाइप तभी से बन गई थी जब वी गॉट टू नो दैट ही विल बी ट्रैवलिंग एज अ फुल टाइम कोच फ्रॉम दिस सीरीज तो वी ऑल गॉट वेरी एक्साइटेड कि अब इस एरा में क्या होगा हाउ विल हम्म. गंभीर टेक डिसीजंस बिकॉज जिस नेचर से हम उनको जानते हैं हमेशा से कि मतलब हमेशा स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑलवेज वे आर टेकिंग अ बैज ऑन देयर स्लीव एंड ये सारी चीजें तो आई थिंक उससे ये काफी ज्यादा हाइप बन गई एंड प्लस डिसीजंस जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचेंगे वो ऐसा हाँ. हुआ भी आई थिंक हम्म. एंड जैसा हमने ये देखने को मिला कि सूर्य कुमार यादव बन गए T20 में कैप्टन जो वर्ल्ड हम्म. कप के बाद मतलब आई थिंक जब मैंने आपसे शायद पूछा भी था कि कैप्टन कौन होगा क्या होगा आप दोनों ने एकदम बोल दिया वो तो हार्दिक ही होना है इसमें क्या है तो यही बात है कि मतलब एकदम से स्काई का आ जाना एंड आई थिंक वो डिसीजन जैसा है वो तो हम अभी आगे बात करेंगे बट आई थिंक वहां पे एक बहुत ही बोल्ड कॉल ले लिया गया बिकॉज हार्दिक वॉज वाइस कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप तक तो वो एक डिसीजन ले लेना आई थिंक काफी आउट ऑफ द बॉक्स था देन गिल को वाइस कैप्टन बना देना हम्म. इन द वाइट बॉल फॉर्मेट आई थिंक वो भी एक दिखाता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है टीम एंड मे बी आफ्टर रोहित और कोहली हैंगिंग अप देयर बूट्स आई थिंक गिल माइट बी द नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन या, इस पे तो मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर इज नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर, राइट? गौतम गंभीर हैज नेवर बीन इम्पोर्टेंट. इंडियन टीम इज इम्पोर्टेंट. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गौतम गंभीर ने खुद कहा है. उसने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अगरकर एंड गौतम गंभीर ने, दे हैव मेड मेनी पॉइंट्स, एंड आई विल पिक यू 5 पॉइंट्स. आई विल गिव यू 5 पॉइंट्स दैट आर द हाईलाइट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर की दिल्ली वाला बॉन्ड अभी भी जारी है. देयर इज नो नीड टू वरी फॉर द फैंस. Gautam Gambhir has said on record that Virat Kohli is a world-class player. On the field, off the field, he respects him, and that's a very, very big positive for him. Positive for Indian fans is the point number two. If Rohit and Kohli are fully fit, they are likely to play the 2027 World Cup, which is in South Africa, right? So that is an exciting news for all of us, because after the 2023 heartbreak, and even Mohammad Shami on record has gone to say that I would want the entire core of 2023 to play the 2027 World Cup and win it. So hopefully, one last time, one final time, we will see them lift the World Cup. Third, and one of the most crucial points out of this press conference is that BCCI is making another poster boy. And when I say that,
you have seen in the past how MS Dhoni represented India in all three formats. Then Kohli came in the picture. Then Rohit Sharma was the poster boy of Indian cricket for very long. Now they are looking at Shubman Gill, who they have said will be an all three format player, and that's why he has been elevated to vice captainship in T20s and in ODIs as well. Fourth point, which is a like a breath of fresh air for CSK fans like me, Ravindra Jadeja is not dropped. He has been rested because it's sort of a workload management for him, because we have a very intense and very busy test calendar going forward. And the last one, which is a shock for most of us, Hardik Pandya is not the Indian T20 captain. It's Surya Kumar Yadav, and the biggest reason for that, जो गौतम गंभीर एंड अगरकर ने हाईलाइट किया है, is that they need their T20 captain to be available for all matches, and Hardik Pandya has fitness issues. Not only Hardik Pandya is the factor, but Surya Kumar Yadav को अब वो एक फॉर्मेट का प्लेयर देख रहे हैं, which under Dravid and Rohit Sharma it was a little blurred. Surya Kumar Yadav को टेस्ट टूर्स पे भी लेके गया Rohit, and then he took him to the World Cup also. But now Gautam Gambhir has his eyes set that Surya Kumar Yadav is my one format player, and that is T20s, and he'll lead my team because he will play T20s consecutively for the next 3 to 4 years. So these are main 5 points that have come out of the press conference today. But apart from all of these pointers, what is exciting to see is the like steadfast and the headstrong coach that we have finally got, right? आज तक हमने जो कल्चर देखा था, हमने ओवरऑल देखा कि यार बिल्कुल भी ऐसे कोचेस थे जो प्रोबेबली एक टाइम के बाद कैप्टन्स की यस मैन बन के रह जाते थे, एंड कैप्टन्स यूज्ड टू लीड टीम इंडिया. I see that culture little transitioning into coach having that power, which was there when we had the likes of Greg Chappell also calling the shots most of the time. John Wright was a very strong headed person himself, right? तो हम वो वापस फेज आता हुआ देख रहे हैं when coach and captain will have equal say in the team. बट जो एक से जो उन्होंने ले ली है, वो मैं अभिषेक के पास आऊंगा कि it's a very tough pill to digest, and it is defying some logics, but definitely, as Gambhir said that he has taken the decision for the country. Rituraj Gaikwad ka exclusion, and whatever said and done on Gill being the next superstar, young prince and everything, how do you take this, and what are your thoughts on this more importantly? We are obviously मतलब gutted from this particular decision, and साथ ही साथ में मतलब मेरे समझ के परे पर्सनली, अगर मैं पिछले कुछ पास्ट के कुछ सीजन्स के रिकॉर्ड्स देखूं, बीट डोमेस्टिक बीट इंटरनेशनल आईपीएल देखूं, सबसे पहली बात तो ये है कि यार गायकवाड जो एक प्लेयर है, मतलब आप अगर देखें तो लास्ट के कुछ सीजन में उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. नाउ आई एम नॉट लाइक प्राइमरली मेकिंग इट गिल वर्सेस गायकवाड, बट अगर मैं लास्ट 2 सीजन की बात करूँ तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स. अगर आप लास्ट के अगर 2 साल के इंटरनेशनल मैचेस देखें तो उसके अंदर गिल ने क्लोज टू 19 मैचेस खेले T20 के अंदर, 500 और रन मारे हैं, एवरेज उनका अराउंड 30 रहा है, ठीक है, विद अ वेरी मॉडेस्ट स्ट्राइक रेट. साथ ही साथ में अगर आप गायकवाड को देखिए, गायकवाड ने क्लोज टू 500 रन मारे, बट विद अ वेरी गुड एवरेज अराउंड 63, और उनका स्ट्राइक रेट भी अराउंड 150 का रहा है. अगर मैं लास्ट के 2 आईपीएल सीजन देखूं तो पिछले सीजन के अंदर ऑब्वियसली गायकवाड का मच बेटर परफॉर्मेंस रहा था, गायकवाड का एवरेज स्ट्राइक रेट सब कुछ ज्यादा था. उससे पिछले सीजन में ऑब्वियसली गिल का ब्रेक थ्रू सीजन था, 890 और रन मारे थे उन्होंने, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि गायकवाड ने भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 रन मारे थे. तो अगर मैं ये सारी चीजें देखूं, साथ ही साथ में मैं डोमेस्टिक सीजन देखूं, तो गायकवाड ने एक अच्छा अपने लिए एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से कंसिस्टेंटली टीम को बीट सीएसके बीट इंडिया उन्होंने इम्पैक्ट दिया है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि गिल कहाँ पे पीछे रह रहे हैं. अगर आप कहते हैं कि उनकी एज अराउंड 27 है, ओपनिंग स्लॉट्स पूरे फुल्ड है, तो या दूसरे साइड पे आप सैमसन को भी लेके जा रहे हैं जो क्लोज टू 30 इयर्स के हैं. आप एक साइड पे बोलते हैं कि यार सारे प्लेयर्स को जिनको जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बैक करेंगे, आप ले जा रहे हैं एक साइड पे सुंदर को, आप ले जा रहे हैं टूर पे, आप सैमसन को अभी भी बैक कर रहे हैं, आप हर्षित राणा जैसे नए प्लेयर्स को ला रहे हैं. तो गायकवाड ने ऐसी क्या गलती कर दी है, कहाँ पर उनका मिस हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं यार कि बहुत लोग इमोशनल है, इमोशनल होने वाली बात है. वी डोंट रियली वांट कि एक ऐसा बढ़िया प्लेयर जिसका करियर अभी तक सीएसके में काफी अच्छा रहा है, इंडियन टीम के लिए आगे जाके एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बने वो. बट अभी हम ये देख पा रहे हैं कि ड्यू टू सम रीजन, मे बी इट कुड बी बैड पीआर, इट कुड बी lack of a personal relationship in maybe the selectors or even with the coach itself, ये डिसीजन हमें देखने मिला है. तो गायकवाड के लिए मैं पर्सनली बहुत कटेड हूँ, और सबसे मेन बात कि ये परफेक्ट टाइम था उनको ट्राई करने के लिए.
अभी श्रीलंकन टूर है, उसके बाद में न्यूजीलैंड आएगा, मे बी देन आपका बीजीटी आ रहा है, तो ही कुड हैव बीन ट्राइड राइट नाउ, ही कुड हैव बीन गिवन अ चांस इन वन पर्टिकुलर फॉर्मेट एट लीस्ट, जस्ट लाइक हाउ यू आर ट्राइंग सूर्य कुमार यादव। उन्होंने अपना पूरा नाम बनाया, आपने उनको कैप्टन बना दिया है। गायकवाड़ में भी वो लीडरशिप स्किल्स है, गायकवाड़ को अगर आप देखिए सीएसके को लीड कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक साइड को भी उन्होंने लीड किया है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीडरशिप के लिए आप उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिए, बट टीम में उनका स्पॉट तो पक्का बनता था अगर आप देखें तो यू नो एब्सोल्युटली कंप्लीटली आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा क्यों किया गया है, बट लेट्स होप कि आने वाले मे बी कुछ टूर्स के अंदर उनको एक चांस मिले एंड ज्यादा देर ना हो जाए उसको करने में। अगर देर हो गई एक बार तो बहुत ऐसे करियर्स है जो ऐसे वेस्ट हुए हैं ड्यू टू मे बी ईगो इश्यूज, ड्यू टू कम यू नो सिलेक्शन इश्यूज, बट लेट्स होप कि गायकवाड़ के साथ ऐसा ना हो। Correct. Fair enough. And we all hope that, Gaikwad doesn't speak on social media. He lets his bad talk. And he has done that in the past and he will do it. And एक और सीजन उनको और धोनी के साथ चाहिए, वो इनकी लाइफ का ये जो नीचे गया है ट्रफ, उसका भी सिखा देंगे कि यार इसको कैसे डील करते हैं। बट साथ साथ एक और नाम है जो पर्सनली स्पीकिंग I was never convinced that he can, before this IPL, that he can get into the team right now. But the kind of cricket or the brand of cricket that we want to play and the kind of, like the cricket the world is playing, Abhishek Sharma, right? तो सिद्धार्थ मतलब देखिए हमने आज तक irrespective of whatever Virat Kohli has done for the country, whatever he has been doing, जो रोल ऑफ एक T20 एंकर है ना वो अब डिमिनिश होता जा रहा है, राइट? ये आप भी मानेंगे एंड लाइक इट्स एक्चुअली शोइंग इन ऑल द लीग्स एंड द वर्ल्ड कप्स दैट एक एंकर का रोल while it is still important, but कहीं ना कहीं you can't play with a couple of anchors and you need firepower up top, especially when the field is up. तो अभिषेक शर्मा and यशस्वी जायसवाल could have potentially been our Abhishek Sharma and Travis Head, which SRH was successful with, and those southpaws opening karte hue, who minds? And Abhishek Sharma can give you overs also. So what, as per you, led to the omission of Abhishek Sharma, and like what else does he need to do? Obviously he needs another good season, but uske alawa aisa kya kare wo ki wo finally we trust our youngsters and give them a long rope. उनका तो पीआर भी ठीक ठाक है। हाँ तो यार देखो अभिषेक शर्मा का जो है मेरे हिसाब से आई थिंक मैं तो वैसे खुद इसके फेवर में नहीं हूँ कि भाई ही इज ड्रॉप। ये तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे लगा, ऋतुराज का आपने नाम लिया, अभिषेक शर्मा लिया और एक मुकेश कुमार भी है, तो ये इन तीन प्लेयर्स का मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करना नहीं बनता था बिकॉज ऑफ हाउ आर दे परफॉर्मिंग, एंड चाहे ये बी स्ट्रिंग टीम्स के पार्ट होते हैं हमेशा, मेन टीम के पार्ट होते नहीं है। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि अभिषेक शर्मा जो है आई थिंक ही स्कोर्ड 100 इन द सेकेंड T20, तो उसमें उससे आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस जो है इनकंसिस्टेंट हो गई, बट फुली मैं उनको ब्लेम नहीं करता बिकॉज पोजीशन बदल गई, ओपन से उनके लिए वहां पे आया गया। बट मुझे लगता है कि काफी एक ड्रॉबैक इस पूरे स्क्वाड सिलेक्शन में यही लगा कि गिल के हिसाब से चीजें हुई है। मतलब मुझे देखकर पर्सनली ऐसा लगा कि मतलब उनके हिसाब से स्क्वाड बनाया गया है, उनको वाइस कैप्टन रखा गया है और मतलब उनके लिए एडजस्ट कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा मतलब देखने को जरूर मिला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मतलब all is fair, like as long as the interest of the country is the foremost. But country तो देखो, I am confident that India Sri Lanka will go as a breeze, right? Even if there is an upset here and there, the team will learn. But country से ज्यादा क्लब्स की थोड़ी सी न्यूज आ रही है आजकल। मेरा तो थोड़ा सोशल मीडिया like has been flooded with sort of unbelievable news with like main stalwarts leaving their own franchise and going for a not for a rival, but some are without teams, कई लोगों की teams भी pop up हुई हैं, है ना? तो थोड़ी सी गॉसिप एंड थोड़ी सी रूमर्स एंड थोड़ी सी इसको सेटल करके ना आप भी थोड़ा सा बताइए सिद्धार्थ की ये चल क्या रहा है यार? आईपीएल तो अभी बहुत दूर है, अभी से क्यों न्यूज आ रही है, क्या न्यूज आ रही है ये? यार देखो ये न्यूज सबसे पहले तो इसलिए आ रही है बिकॉज वी ऑल नो कि मेगा ऑक्शन होने वाला है, एंड मेगा ऑक्शन में ही वैसे बड़ी सारी चीजें हो जाती हैं, हमने हर बार होते हुए देखा है। बट इस बार मुझे लगता है कुछ बहुत ही अलग होगा, एंड मुंबई इंडियंस में कंट्रोवर्सीज एंड ये सब चीजें जो चल रही थी, बिकॉज इफ दैट टीम इज स्टिकिंग विद हार्दिक एज देयर कैप्टन आगे जाके भी, तो मैं तो डेफिनेटली ये बात मानता हूँ कि प्लेयर्स लाइक रोहित, स्काई, इवन बुमराह वो शायद ये चीज प्रेफर नहीं करेंगे।
एंड बिकॉज वो एंड स्काई तो मुझे लगता है पहले मैं फिर भी सोच लेता था, बट आई थिंक अब तो मुझे स्काई का बहुत कम चांस लग रहा है कि वो मुंबई में रहने वाले, बिकॉज अब इंडिया के कैप्टन बन गए हैं। इट्स लाइक वो कि अब हम वो स्काई नहीं रहे, अब हमें फुल इज्जत चाहिए। तो वही अब मुझे लगता है स्काई तो जरूर डिमांड करेंगे कि मैं किसी ऐसी टीम में जाऊं जहां कैप्टनसी मुझे मिले। केकेआर का नाम आ रहा है इसमें, बट आई एम नॉट श्योर वहां कैसे होगा। इवन दो रोहित स्काई दोनों का केकेआर के लिए नाम आ रहा है, क्या आप आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को हटा दोगे उसके उनके लिए? तो अब ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी एलएसजी, आरसीबी, पंजाब, आई थिंक यही टीम्स फिर इनको टारगेट करेंगी। एंड रोहित शर्मा एंड स्काई मुझे लग रहा है दोनों, आई थिंक दे विल पार्ट वेज विद मुंबई इफ हार्दिक इज द कैप्टन। ये मतलब ये तो सिद्धार्थ, आप जो रोहित शर्मा और स्काई की बात बता रहे हो ना, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू केकेआर फॉर दैट मैटर। मतलब मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि स्काई मे बी डीसी भी मूव कर सकते हैं, या रोहित जी डीसी के जी, कैप्टन बन सकते हैं बिल्कुल मैंने सेम ये टाइम पे। सुना कि इवन और भी टीम्स आ हाँ, सकती हैं। बहुत बहुत लॉन्ग शॉट है वो, हो सकता है कहीं पे जाके आरसीबी टाइप में भी सेटल हो, और आरसीबी का इस साल कप नामने वाला जो है वो मे बी पूरा करवा के दिखा दे रोहित। बट आरसीबी के लिए तो एक जो सबसे खतरनाक जो न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है भाई ऋषभ पंत। अब हम्म ऋषभ पंत जो बंदा है भाई, ऋषभ पंत है विकेट कीपर दिल्ली का ही लौंडा है, मतलब ऑब्वियसली है उत्तराखंड से, दिल्ली में खेले सोनेट क्लब में, वेंकी के लड़के है वो। और स्टार्टिंग में ऋषभ पंत को दिल्ली ने ही पैक किया। आज जो ऋषभ पंत है दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली कैपिटल्स, वो बहुत बड़ा रीजन है ऋषभ पंत के वो होने में। इवन आफ्टर द एक्सीडेंट 1 साल तक उनको तगड़ा वाला पैक किया उन्होंने, एंड आते ही कैप्टनसी दी यार। दे लेट गो ऑफ श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, क्योंकि उनको लगा था ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एक लॉन्ग टर्म बेट है। अब जो न्यूज आ रही है कि भाई ऋषभ पंत, ऑब्वियसली हम माही से उनका क्लोजनेस जानते हैं, कितना वो क्लोज है साक्षी भाभी और माही के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं पे एक बात आ रही है कि यार सीएसके मूव हो सकते हैं। सीएसके जाके वहां पे ही कुड बी लाइक द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर माही टू बी द विकेट कीपर। एंड इवन ये बात भी आ रही है कि भाई दे कैन ही कैन आल्सो लीड सीएसके इन फ्यूचर। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है जिसपे ऑब्वियसली मी बीइंग अ डीसी फैन, आई डोंट वांट दैट हैपनिंग। बट अगर ऋषभ पंत अपना पर्सनली सोचे तो भाई सीएसके जाने के लिए कौन ही मना करेगा। सीएसके जाने का ऑप्शन मिलेगा और कैप्टन बनने का ऑप्शन मिलेगा, तो भाई इतना बड़ा फैन बेस है, इतनी सारी चीजें हो सकती है वहां से। कल को जाके इंडियन टीम में भी एक फॉर्मेट का कैप्टन बन सकता है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत शुड टेक अ वेरी गुड कॉल। अगर इमोशनल एंगल से देखे डीसी फैंस के थ्रू, तो मत जाओ भाई। और अगर जा रहे हो तो अभी बता दो, ताकि हम लोग तैयार रहे अगले सीजन के लिए, बढ़िया सा प्लेयर उठाए कोई, फिर हम भी सूर्य और रोहित के पीछे भागेंगे। हम्म। And, हाँ तो and as I think I would want from this entire conversation, all CSK fans, including me, just type it out in the comments that would you want Rishabh Pant as a successor of Dhoni, or would you still stick with Rituraj Gaikwad? And that will be a very, very interesting call to take by India Cements and all the owners, right? भाई And वक्त का तकाजा ये लग रहा है मेरे को कि बेचारे गायकवाड़ का यहाँ पे भी कटेगा। मुझे पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि वो आएंगे और फिर यहाँ पे एकदम जाके ही वुड बी द सेकंड फिडल नाउ इफ पंत कम्स इन। ये पंत का ब्रांड वैल्यू पीआर वो नेक्स्ट लेवल है। तो गायकवाड़ को यार सॉलिड पीआर पे काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो मतलब व्हाट्स लैकिंग पर्टिकुलरली इन पीआर, बट इफ दैट इज वन एलिमेंट व्हिच डिसाइड्स ऑल दीस थिंग्स, तो गायकवाड़ शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो अगर I, मैं हाँ, से बोलिए मतलब बोलिए। चाहूंगा, तो आई थिंक ऋषभ पंत का अगर ये होता है टू सी एस के, अगर वो जाते ही, मुझे प्रॉपर बिजनेस डील लग रही है। बिकॉज आई थिंक आपको कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि सी एस के हमेशा से एक ऐसी फ्रेंचाइज रही है जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक एक ही प्लेयर के साथ कंटिन्यू किया है, एंड सेम लोगों के साथ कंटिन्यू किया है हमेशा। तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी से हटाना, ऐसे उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उनका हिस्ट्री जो रही है सीएसके की एज अ फ्रैंचाइज, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दे विल रिमूव ऋतुराज फ्रॉम कैप्टनसी। एंड हम्म, जहां तक बात पंत की है, हाँ एक इस बिजनेस एंगल में सोची जा सकती है, बिकॉज धोनी के बाद कोई कीपर चाहिए आई थिंक उनको, ऐसा जो मतलब फेस बने टीम का। एंड अगर पंत आ रहे हैं अगले साल सीएसके, and that I think means that it's curtains for Dhoni and he'll be not be playing from the next year. नहीं यार, मतलब सिद्धार्थ, तो आई हैव अ डिफरिंग ओपिनियन यार। इफ यू आर सेइंग कि अगर पंत आ रहे हैं ना सीएसके अगले सीजन ना, धोनी खेलेंगे कुछ मैचेस तो खेलेंगे, ही विल बी देयर, ही विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक पासिंग ऑन द बैटिंग टू पंत इन इन अ वेरी सिंबॉलिक वे। मुझे लगता है खेलेंगे जरूर एक बार पंत के साथ में। उनको देखना है कि यार वो लेफ्ट आर्म आपका हिटर आएगा 3 या 4 नंबर पे, और फिर धोनी आके फिनिश करेंगे। मे बी कीपिंग पंत कर ले, धोनी को आके एक दो बॉलिंग फिर से करा दे, एक दो ओवर्स की, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। बट एक बार खेलते हुए देखना चाहता हूँ। बट दिल्ली के लिए ना इसमें बेनिफिट सिर्फ इतना है कि अगर पंत जाते हैं
obviously they'll lose one of the biggest brands in Indian cricket. और साथ ही साथ में आपके पास में कीपर्स की भरमार है आपकी टीम में. आप चाहो तो एक अच्छा सा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो मार्केट में आ रहा है, मे बी इट कुड बी स्काई, मे बी इट कुड बी सम अदर बैट्समैन, आप उसको लेके आओ टीम के अंदर. उसके अराउंड पे टीम बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है. आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास कुलदीप है, मुकेश जैसे अच्छे एक बॉलर है. आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जेक प्रेजम मैकगर्थ और स्टब्स जैसे प्लेयर्स को भी आप रिटेन कर पा रहे हो. और कहीं ना कहीं पे यंग टैलेंट जैसे रसिक सलामदार हो गया या फिर खलील हो गया फॉर दैट मैटर, ऐसे प्लेयर्स को आप या तो आरटीएम कर रहे हो या फिर दोबारा खरीद रहे हो ऑप्शन में. तो एक बड़ा प्लेयर चाहिए दिल्ली को. एक या दो बड़े बैट्समैन अगर दिल्ली के पास में आते हैं तो दे हैव देयर टीम, क्योंकि दे हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑप्शंस व्हिच दे हैव फॉर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट. नहीं देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि वैसे तो काफी जगह ये भी आ गया कि पंत का जो है वो र्यूमर ही है, वो नहीं जा रहे कहीं. एंड मुझे भी ऐसा वैसे लग ही रहा है. मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज मैं डीसी का फैन हूँ या वो बात है, बट मुझे ये लग रहा है कि पंत विल स्टे विद डीसी, नॉट गो टू सीएसके. वो इसीलिए, ये आप बोल्ड क्लेम भी मान लो मेरा, बट ये इसीलिए भी मुझे लग रहा है बिकॉज एक तो ये कि डीसी हैज डन एवरीथिंग फॉर हिम. और जो आप कह रहे थे कि सीएसके जैसी टीम को कौन नहीं लीड करना चाहेगा या कौन उनको नहीं करना चाहेगा, बट आप ये सोचिए अगर कल को उन्होंने डीसी को जिता दिया तो उनको उसमें ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिलेगा कि एक अंडरडॉग टीम को उन्होंने जिताया. इवन दो इफ ही विंस फॉर सीएसके, वहां एज अ मेंटर मतलब मान लो लोग धोनी को या मैनेजमेंट को क्रेडिट दे देंगे या उस सीजन जो अच्छा खेल रहा होगा उसे दे देंगे. यहाँ अगर पंत और डीसी ऐसी टीम है जहाँ पे ही कैन टेक ऑल द शॉट्स, पंत कैन टेक ऑल द शॉट्स एंड वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आप एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए कि एक टाइम था डीसी के, आई थिंक वो डीसी में अराउंड 2017 या 16 से खेल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली श्योर, एक दो साल आगे पीछे होगा. अभी पंत जो प्रॉपर एक कैप्टन है, पंत को लास्ट सीजन फ्री हैंड मिला था रिकी पॉन्टिंग से, गांगुली से, राइट. अभी चीजें ना बहुत बदल गई है, अभी रिकी पॉन्टिंग है नहीं फ्रेम ऑफ थिंग्स में. एंड एक साइड पे आपके गांगुली है, गांगुली में भी उनको वो फ्री हैंड देंगे, बट गांगुली के खुद के भी बहुत सारे पर्सनल एक वो रहते हैं, जैसे अभिषेक पोरेल को खिलाना हो. पिछले पूरे सीजन में उनको काफी सारे चांसेस मिले थे. ऐसी कई चीजें होंगी जो गांगुली भी डालेंगे, जैसे अब मान लीजिए मिचेल मार्श स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहेंगे, बट पंत के पास में दिल्ली को जिताने से ज्यादा जो उनको एक सॉर्ट ऑफ बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जाके सीएसके को जिताने में, क्योंकि सीएसके को जिताना would be the would be his door to becoming the Indian captain in the future. तो आई थिंक पर्सनली कि यहाँ पर रह के ऐसे कुछ प्लेयर्स जैसे अक्षर पटेल हो गए या फिर कोई और इंडियन कोर का प्लेयर हो गया, अगर उसको कैप्टन बनाते हैं, वो डीसी को जिताता है, उसके लिए बहुत ज्यादा पर्सनली बेनिफिशियल होगा. अंत ऑलरेडी डीसी से जितना बेनिफिट ले सकते थे या जितना डीसी को फाइनल में खिला दिया, उनको मल्टीपल टाइम्स उन्होंने प्लेऑफ्स खिला दिए, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि पर्सनली इतना वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे. हाँ बट मतलब ठीक है, बट मुझे पर्सनली ऐसा ही लग रहा है कि पंत को जो है उनको मतलब डीसी ने इतना कुछ दिया है, एंड मतलब इफ ही स्टिक्स विद डीसी एंड ही डज वेल विद देम, तो मुझे लग रहा है वहां पे उनके लिए एक ज्यादा एक रिकग्निशन या फिर एक ज्यादा मतलब लोग और सीरियसली देखने लगेंगे कि ऋषभ पंत ने एक ऐसी टीम को जिताया विच हैज मोस्टली अंडर परफॉर्म. तो आई थिंक ही शुड नॉट लीव दिल्ली, एंड काफी जगह बात हो भी रही है कि ही माइट नॉट लीव. मतलब दोनों जगह की रिपोर्ट्स हैं, दोनों टाइप की, बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि वो नहीं जाएंगे. बिल्कुल. And अभी तो there is the news doing the rounds that Karnataka government has introduced reservation in the management jobs in the Karnataka region, and the first recipient जो rumors आ रहे हैं कौन होगा, वो होंगे KL Rahul, because there is another news doing the rounds that KL Rahul might leave LSG and become the captain at RCB once Faf du Plessis leaves, which is inevitable by the end of this year, that Faf might hang his boots and he might not be an IPL quality player anymore. And with whatever has happened with KL Rahul, across these 2-3 years at LSG, right? Pehle, like they have consistently, for at least for 2 years they qualified, and the third year they didn't. And you saw it on the field how the scuffle between their owners and him was, right? वो बंदा वहां से बोल रहा है and ये बंदा politely सुन रहा है, right? Maybe it was because he had it in his mind all way long that Bangalore is where he wants to be next, and there is an open passage. If Virat Kohli does not decide to take up captaincy again, don't be shocked if you see KL Rahul on the auction table for RCB next year with or even leading them on the toss
in the first match because every box is ticked in that way. KL Rahul moves from a toxic sort of a team. KL Rahul gets to play in front of his home country. RCB gets a captaincy replacement. RCB gets an opener replacement. So all points are pointing towards just one thing: KL Rahul to RCB. Don't be shocked. You heard it here first. नहीं, आई थिंक मैं इसके फेवर में हूँ, ये होगा। एंड मतलब केएल राहुल एलएसजी तो जरूर छोड़ देंगे, आरसीबी जाते हैं नहीं ये देखना मतलब बहुत दिलचस्प होगा, बट आई थिंक एलएसजी तो वो छोड़ ही देंगे। एंड उसके बाद उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए एक डिनर भी रखवाया, विच वाज अ फुल पीआर एक्टिविटी, जहाँ पे वो एक दूसरे को हग कर रहे थे एंड दिखा रहे थे कि एवरीथिंग। देखिए सिद्धार्थ, मतलब ये ना एक बहुत पुरानी सेइंग है कि बकरे को हलाल करने से पहले ना उसको खाना खिलाया जाता है. So probably that was the preparation for that. That Sanjeev Goenka himself is not aligned with KL Rahul, and the way Sanjeev Goenka bashed KL Rahul in front of the cameras, in front of almost like billions of people watching on TV, Rahul is thinking the same, right? So don't be surprised, don't be shocked if that happens in the near future. I'm not. यार गोयनकास ने यार धोनी को बैश करने का मौका नहीं छोड़ा था, केएलआर तो फिर भी छोटी चीज है। धोनी तक के साथ ऐसा कर दिया तो मतलब आई थिंक वो तो उनके भाई थे, मतलब इवन गौतम गंभीर वाज विद एलएसजी, मुझे लगता है वो भी यार नहीं पाया होगा। एक बोल्ड प्रेडिक्शन और करूंगा कि आप दोनों की बात सही है, केएलआर की भी ऋषभ की हो गई, बट मुझे लगता है पर्सनली विराट कोहली के लिए भी ना बेस्ट टाइम है ये, आरसीबी छोड़ के कहीं और जाके आईपीएल ट्रॉफी जीत के भाई क्रिकेट कंप्लीट करो आप। आरसीबी को दे दी जितने साल देने थे, दिल्ली आ जाओ वापस, दिल्ली आपका घर है, दिल्ली आओ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलो, अंत जाए कोई भी जाए फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बिल्कुल सिर आंखों पे आपको सजा के रखेंगे, दिल्ली आ जाओ वापस और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलो आके। भाई बैंगलोर वाले जाने नहीं देंगे विराट कोहली को, आप उनका एक मैच दिखाइए लाइव, विराट कोहली के अलावा उनके मुंह पे कोई लफ्ज नहीं होता है विराट कोहली। एंड इनफैक्ट विराट कोहली ने जब कैप्टनसी छोड़ी भी थी, आरसीबी के ब्रांड वैल्यू का क्या होगा अभिषेक अगर वो चले गए वहां से? तो फैंस केएल राहुल आएंगे यार, केएल राहुल को आप कम थोड़ी समझ रहे हैं। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। Now we have talked about everything serious and everything cricket. We'll still continue with everything cricket, but उससे पहले, before we move on to our fun segment, T20 ODI series versus Sri Lanka. Quickly, your predictions, guys. Abhishek, with you first. यार कोई सवाल ही नहीं है, इंडिया है। इंडिया स्कोर लाइन, गोल लाइन पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट आई वुड सजेस्ट इंडिया। एक आध मैच आप मान लो श्रीलंका खींच लेगी, अपसेट हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, बट हाँ इंडिया विल विन कंफर्टेबली। व्हाट अबाउट सिट? अरे मुझे तो यार देखो ये लग रहा है कि T20 में मे बी श्रीलंका एक मैच जीत जाएगी, बट आई थिंक 2-1 से इंडिया विल विन द T20 एंड ओडीआई तो आई थिंक क्लीन स्वीप कर देगी इंडिया 3। Even I predict a complete whitewash, 6-0 India winning, because we are going with our full strength team, and Sri Lanka की full strength team भी आजकल half strength ही लगती है. So India का तो I think it should be clear, and hopefully Virat at least gets to 100 so that he's closer to that 100 number. पिछली बार 2017 में ही मुझे याद है कि जब हम गए थे तब 9-0 करा था उन्हें श्रीलंका में। वही करेंगे बिल्कुल। तो चलिए अब मूव करते हैं। नाउ आई हैंड इट ओवर टू यू सिद्धार्थ, because you have prepared a lot, yeah. I mean, the hard work that goes behind each video is tremendous, and आप आज थोड़ा हमें थोड़ा fun segment से end करते हैं, so that like our viewers also interact with us in a way that where they give us, and like it's a very good response. जो भी viewer इस time stamp तक पहुंचा है, please leave a high in the comments, because if you have listened up till now, we are very happy to have you here, and please give us your suggestions, probably in the DMs and whatever it is. The code word of your comment would be thala, ठीक है? थला के नीचे अगर लिखेंगे तो आप समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ तक हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी है। तो over to you Siddharth, I think you are the host now and the quiz master. Let it flow. So get ready guys। सबसे पहले तो मैं थोड़े रूल्स बता दूं, वो ये है कि आप हो टीम अभिषेक, आप हो टीम बाबा। तो इसमें अब आपको ये करना है कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन ईच पूछने वाला हूँ दोनों से, एंड इसमें 5 पॉइंट्स ईच है हर सही सवाल पे।
एंड अगर ये टाई हो जाता है तो एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन में और पूछ लूंगा, तो उससे हो जाएगा। तो कंपेटिटिव मोड में थोड़ा आ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टीम अभिषेक, आपका सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर। हु इज द ओनली प्लेयर टू हैव रीच्ड 100 टेस्ट्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल गेम? मतलब कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने 100 टेस्ट सारे खेले हैं बिना कोई मैच मिस करे हुए? चार ये है, ऑप्शन। आई थिंक दिस इज नेथन लायन, ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर। नो, द 4 ऑप्शंस आर आई थिंक एलिस्टर कुक, ओके, सचिन, विराट कोहली एंड ब्रेंडन मैकलम। मेरे को लायन का बता था कि लायन ने काफी टेस्ट खेले हैं विदाउट गेटिंग इंजर्ड, और आप बोल रहे हो वो लिस्ट में ही नहीं है। तो ओके, इज इट एलिस्टर कुक? नो, इन चारों ऑप्शंस में से ही यू हैव टू टेल। ओके, सो नाउ एक, हाँ तो कुक तो आपने ऑप्शन दिया ना, हाँ, कुक तो नहीं। तो मतलब फिर एक और गेस लूं या फिर आप बाबा को पास करोगे? वन लास्ट गेस, फिर मैं पास कर। सचिन? नो, नाउ आई हैव टू कर लीजिए बाबा के पास। pass it to। आई थिंक इसमें ना मेरे लिए अब बहुत इजी हो गया क्योंकि मेरे पास भी 2 ऑप्शंस हैं बोलने के लिए। मैं वैसे मेरा आंसर स्टार्टिंग में ही अगर मैं चूज करता तो आई वुड हैव चूजन बैज। बैज इज द राइट आंसर और बैज इज रॉन्ग। बट ठीक Right. है, मतलब पॉइंट बीइंग दैट अभिषेक loses his points. Now you ask a question to me and I'll take an attempt, 2 options. If I lose, I get 0 points. Right now Abhishek has 0 points. ठीक है, अब आप मुझसे मेरा क्वेश्चन पूछिए। जी, अब आपके लिए क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कि हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द ओडीआई वर्ल्ड कप? एंड द ऑप्शंस आर 1 टाइम, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। Trick question है because India has co-hosted the World Cup a couple of times, or I think one time. 96 was co-hosted. Do we include co-hosted World Cups also? Yes, 2011 to 1987, 1996. These are the 3 ODI World Cups, right? And 2023, of course. So 4 times. दिस इज द करेक्ट आंसर। तो Nice. Good. 1987 में इट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, 96 में इंडिया एंड श्रीलंका, then 2011 इंडिया श्रीलंका एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश, एंड 23 में तो फुली इंडिया ने किया। तो आई थिंक 10-0 हो गया स्कोर लाइन यहाँ पर। तो पहला सवाल अभिषेक आपके लिए ये रहा, विच इज कि विच टीम हैड टाइड ट्वाइस इन वर्ल्ड कप्स? मतलब एक ऐसी टीम जिसने जिनका मैच एक से ज्यादा बार टाई हुआ है वर्ल्ड कप में। आपके पास 15 सेकेंड है इसके लिए, एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड दिस इज विच वर्ल्ड कप? 50 हो। एक ही वर्ल्ड कप में या मल्टीपल नहीं, वर्ल्ड कप्स अलग बोले आप? अलग। 10, 9, 8। इज इट साउथ अफ्रीका? Yes, it is South Africa. Good. चलिए, You get 5 points. थैंक यू थैंक यू। हाँ, and now moving on to Baba. आपके लिए सवाल है कि which is the first man to win IPL as a coach and as a player? First player to do that. And इसके options हैं Darren Lehman, Stephen Fleming, Ricky Ponting या Jacques Kallis. And your time starts now. Ricky Ponting, Jacques Kallis. Jacques Kallis 2012 में जीते थे एंड 2013 में एज पर माय कैलकुलेशंस ही शुड हैव रिटायर्ड एंड 2014 में केकेआर वन अगेन। Jacques Kallis? No. No. Okay. So अभी के लिए Abhishek is leading. Abhishek 5, Baba 0. Now next question to Abhishek.
अभिषेक, अब आप बताइए कि ओनली ओवरसीज प्लेयर टू विन एन इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इन आईपीएल, एंड द ऑप्शंस आर शेन वॉटसन, सुनील नारायण, मुस्तफिजुर रहमान एंड जेएफएम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पेस बोला आपने, मेगक बोला आपने, आपने बोला वॉटसन, और आपने एक और क्या ऑप्शन दिया था लास्ट? सुनील नारायण. सॉरी, सुनील नारायण. Yes. ओके. इज इट मुस्तफिजुर रहमान? Yes. ओके. Good. Okay. 5, 10. 10. And now, बाबा, आपके लिए क्वेश्चन है. Which of the players have not captained Dhoni? मतलब Dhoni has not played under which player in the IPL? And the options are Ravindra Jadeja, Suresh Raina, Steve Smith, or Ben Stokes. I think it's Ben Stokes. रविंद्र जडेजा के साथ वो 2021 में खेले हैं, रायना के साथ वो पहले खेले ही हैं, स्टीव स्मिथ से उनको खिलवाया गया था, एंड इट इज बेन स्टोक्स. Yeah, it is Ben Stokes. So यार इस क्वेश्चन के 10 पॉइंट देते, टाई ब्रेकर करा दो यार. हाँ, That would be मजा आएगा. the way I am forward. let's have a tie breaker, Siddharth, if you have a question prepared. वरना आपका दिमाग तो मोटर की तरह यार, बना दो एक क्वेश्चन. चलो कर लेते हैं. तो आ जाते हैं एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन पे. तो ये सवाल है आपसे अभिषेक कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन आईपीएल ऑरेंज कैप? एंड आपके ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और मुरली विजय. ओके. और आपका टाइमर चल रहा है कि नहीं इसमें? नहीं, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ. देखिए, गंभीर का ऑरेंज क्या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सहवाग का मुश्किल है, मुरली विजय अच्छा खेले थे, सचिन सचिन के पास भी एक ऑरेंज कैप था. आई वुड गो फॉर सहवाग. इज सहवाग द करेक्ट आंसर? नो. अरे, ओ माय गॉड. तो बाबा बताएंगे. बाबा आप ये बता. Your time. मैं ना, मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्ट लगती है जब आप इंसानों के बीच में भगवानों का नाम ले लेते हो, राइट? तो माय आंसर विल बी सर सचिन तेंदुलकर, एंड आई होप इट इज राइट. Yes, it is right. 2010 में करा था उन्होंने ये. एंड Awesome. इससे पहले शॉन मार्श और मैथ्यू हेडन ने की थी. क्या बात है यार, क्या बात है. चलो, अब टाई ब्रेकर करवा रहे हो क्या सिद्धार्थ पे? हाँ जी. तो नाउ नहीं, अब तो वैसे बाबा जीत गई है क्योंकि मतलब बाबा ने सही जवाब दे दिया इसका. बट मेरे लिए नैरो डाउन हो गया था ना ऑप्शन, आप मुझसे भी एक ओ सवाल हाँ, पूछ सकते हो. 10-10 हो गए थे. आपसे भी चलो 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 एक सवाल मैं कर ही लेता हूँ. हाँ. चलो. अब आपको बताना है फर्स्ट प्लेयर, मतलब ऐसा और भी प्लेयर आए हैं बाद में, बट पहला प्लेयर ऐसा जिसने ऑरेंज कैप भी जीती हो उस सीजन और आईपीएल भी जीता हो. अच्छा. एंड इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने: माइकल हसी, रॉबिन उथप्पा, देन इट इज केविन पीटरसन और इट इज रॉस टेलर. तो माइक हसी इसका सही जवाब? नहीं. नहीं, इसका सही जवाब होना चाहिए रॉबिन उथप्पा. यस. एंड उसका आंसर इसलिए मुझे पता है बिकॉज रॉबिन उथप्पा बोलते ही अब अगले दो ऑप्शंस भूल गए कि क्या पूछना था, क्योंकि रॉबिन उथप्पा वाज द राइट आंसर, है ना? एंड माइकल हसी वाला तो मेरे को सीजन याद है, मैं सीएस के फैन हूँ तो मुझे पता है माइकल हसी पहली बात तो शायद ऑरेंज कैप बहुत बात 2011 में जीते थे, एंड किसमें 13 में. उस सीजन वो आईपीएल भी जीते थे ना? नहीं, फाइनल में मुंबई से हार गए. फाइनल में. एंड केविन पीटरसन तो यार दिल्ली में खेले हैं, आज तक हाँ, आईपीएल वही कैप नहीं केविन जीते हैं. पीटरसन सुन के तो मुझे हंसी आ गई यार. रॉस हाँ. टेलर क्या है यार? चल, गुड अटेम्प्ट, एंड आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा ये हमारा, बट इट इज नॉट द एंड. आई आल्सो हैव अ फ्यू थिंग्स टू आस्क, एंड लेट मी यू नो नॉट टेस्ट, but I will like to know your preferences. And so we have our most viewed segment next, which is this or that. And Abhishek, I'll start with you. This or that ODI batters version.
I'll give you two names. You'll have to pick one of those in your all-time ODI 11, and your options are Graham Smith or Ross Taylor. Oh, good one. थोड़ा सा I'm biased towards the Graham Smith, so I'll go for him. Graham Smith or Steve Smith? Graham Smith. Graham Smith or AB de Villiers? ABD. AB de Villiers or MS Dhoni? यार आप मतलब यार दिल से खेल रहे हो यार आप, बट ठीक है, Thala for a reason. 7th episode, so MS Dhoni it is. MS Dhoni or Rahul Dravid? Still MS Dhoni. MS Dhoni or Saurav Ganguly? MS Dhoni. MS Dhoni or Sir Viv Richards? यार नहीं, फिर भी Thala for a reason भाई, MS Dhoni. MS Dhoni or Sachin Tendulkar? One legend against another legend, but God, so Sachin Tendulkar. Now, as my favorite last question is Sachin Tendulkar or Virat Kohli? यार ये मत पूछा करो, ये ना क्या है, इधर से गाली पड़ेगी नहीं तो इधर से गाली पड़ेगी, बट बिकॉज विराट कोहली ने खुद कहा यार, कहा आप सचिन से कंपेयर कर रहे हो हमें, जस्ट फॉर दैट रीजन सचिन तेंदुलकर. That's how it should be. Poetic justice for the god, and Sachin Tendulkar it is then. Let's come to you, Siddharth. What is your favorite format in cricket, Siddharth? मेरा तो यार टू बी ऑनेस्ट ODIs ही है. ODIs. ठीक है. As you wish. I'll bring it to you. The next edition of this or that. This is this or that ODI bowlers version. You have to pick one bowler in your ODI team of all time. Who will that be? Let's find out. Zaheer Khan or Lasith Malinga? Zaheer Khan. Zaheer Khan or James Anderson? Zaheer Khan. Zaheer Khan or Lakshmipati Balaji? Zaheer Khan. Zaheer Khan or Glenn McGrath? Glenn McGrath. Glenn McGrath or Dale Steyn? Glenn McGrath. Glenn McGrath or Brett Lee? Brett Lee. Brett Lee or Mitch Johnson? Brett Lee. Brett Lee or Kapil Dev? Kapil Dev. Final, last, and one of the showdowns. Kapil Dev or the legendary Shoaib Akhtar? Kapil Dev. So, yes, Kapil Dev is part of Siddharth's all-time ODI 11. And yeah, I think that sums it up. And very, very intriguing and very, very productive session for all cricket lovers and everyone hearing us everywhere around India and across. And I think one parting note, at least from my end, is that the response has been amazing. Whatever we are doing has been amazing till now, and we will keep bringing you amazing cricket content. And as we said up top, that we live and breathe cricket, and we'll continue doing so. And this is your host Prabneet signing off, along with Abhishek and Siddharth, who are the pillars of TBB. Hopefully, we'll come with more sessions very, very soon. There has been a request of more long format content from us, and we'll try to deliver that. And we'll obviously make way for the game we love. And thank you for tuning in, and hope to see you in one particular thing. Yeah. Pravneet, one thing. So a lot of our viewers had also requested for some particular suggestions, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप पांड्या और नताशा पे थोड़ा डिस्कस करिए. But just to make it clear, guys, कि मतलब we took your suggestions, but we don't really want to comment on any player's personal life. Or you know, it's a very sort of a personal moment for both for Hardik Pandya and you know, the other person. So let's you know, we are trying कि we focus on cricket related content or मस्ती मजाक, but we'll you know, try and refrain from such content. So उसके लिए we are sorry, but you know, as a sort of a moral thing, we won't be taking it forward. या वैसे content को हम ज़्यादा नहीं दिखाने वाले हैं. तो but और कोई आपके suggestions रहते हैं तो पक्का आप लोग बताते रहिए. And we will keep bantering beyond the boundaries. Thank you for tuning in. Hope to see you next time.